हेलो फ्रेंड्स, आज जो चैप्टर हम कर रहे हैं दैट इज़ चैप्टर नंबर 17 ऑफ क्लास 7th साइंस NCERT और चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट्स आर लाइफलाइन। ठीक है, तो शुरू करते हैं चैप्टर। वन इवनिंग बूझो एंटर्ड द पार्क विद एन एल्डरली पर्सन. ही इंट्रोड्यूस्ड हिम टू हिज फ्रेंड्स. Professor Ahmed was a scientist working in the university. The children started playing with Professor Ahmed sat on a bench in the corner. He was tired as he had participated in the Golden Jubilee celebrations of the town. After a while, the children also came and sat around him. They wanted to know about the celebrations. Professor Ahmed told them that after the cultural program, the senior people discussed the town's unemployment problem. A plan was proposed to put up a factory by clearing an area of the forest just outside the town. This would give the increasing population of the town a chance to get jobs. The children were very surprised when Professor Ahmed told them that many people had objected to this idea. तो बेसिकली क्या बात हो रही है यहाँ पे कि पार्क में डिस्कशन चल रही है कि बाहर टाउन के बाहर एक फॉरेस्ट कवर है, उसको काट के और वहाँ पे फैक्ट्री लगा दी जाए ताकि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो कई लोगों ने इसका ऑब्जेक्शन किया। क्यों किया ऑब्जेक्शन? दिस इज़ बिकॉज द फॉरेस्ट सर्व एज ग्रीन लंग्स एंड वाटर प्योरीफाइंग सिस्टम्स इन द नेचर। क्यों वो उसका अपोज कर रहे थे? क्योंकि फॉरेस्ट जो होते हैं दे सर्व एज लंग्स एंड दे हेल्प इन प्योरीफाइंग सिस्टम्स ऑफ द नेचर को प्योरीफाई करने का काम करते हैं फॉरेस्ट। ठीक है, प्रोफेसर अहमद realized that the children had not visited a forest. Children also wanted to know more about the forest, so they decided to visit it with Professor Ahmed. तो प्रोफेसर अहमद के साथ बच्चे जो है वहाँ पे फॉरेस्ट में जाते हैं। तो one Sunday morning, the children packed a few things like knife, a hand lens, a stick, notebook, and walked together through the forest trail near the village. On their way, they met Tibu, a young boy of their age group of nearby village, who was taking cattle for grazing along with his aunt. He was very agile, running here and there to keep the herd together. When he saw the children, Tibu also started walking along with them, while his aunt went on a different path. As soon as they entered the forest, Tibu raised his hand and signaled them to keep quiet because noise could disturb the animals in the forest. तो सबसे पहले क्या था, जैसे ही उन्होंने फॉरेस्ट में एंटर किया तो टीबू था जो कि वहीं आसपास रहता था, उसने बोला कि भाई अब नॉइस नहीं करना है, आवाज़ नहीं करनी है ताकि जो वहाँ के एनिमल्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो जाए। टीबू देन टुक देम टू अ प्लेस एट अ हाइट टू शो देम द ब्रॉड व्यू ऑफ द फॉरेस्ट। एक हाइट पे लेके गया, वहाँ से फॉरेस्ट का ब्रॉड व्यू दिख रहा था। चिल्ड्रन वर सरप्राइज्ड बिकॉज दे कुड नॉट सी एनी लैंड. The different tree tops had formed green cover over the land. However, the cover was not uniformly green. The environment was peaceful and a cool breeze was blowing. तो peaceful environment था forest में और cool breeze, ठंडी हवा जो है चल रही थी वहाँ पे. This made children quite fresh and happy. While coming down, they got excited on hearing a sudden sound of birds and some noise from the top branches of the trees. ठीक है, तो noise सुना उनको और जो है Tibu told them to relax since it was a normal phenomena here because the children's presence. Some monkeys had climbed higher up on the trees where they disturbed the birds. तो बच्चों को देख के जो मंकीज़ हैं वो और ज़्यादा ऊपर चढ़ गए थे ट्रीज़ पे, उसकी वजह से जो बर्ड्स थे वो डिस्टर्ब हो रहे थे एंड वो आवाज़ कर रहे थे. एनिमल्स ऑफन गिव्स दिस टाइप ऑफ वार्निंग कॉल टू अलर्ट अदर एनिमल्स. तो एनिमल्स इस तरह की साउंड निकालते हैं ताकि वो अपने आसपास के एनिमल्स को अलर्ट कर सकें कि कोई डेंजर तो नहीं है या कोई इस तरह की सिचुएशन तो नहीं होगी है. टीपू ऑल्सो टोल्ड दैट मैनी अदर एनिमल्स लाइक बोर, बिजन, जैकाल, पॉर्क्यूपाइन, एलिफेंट्स लिव इन द डीपर एरियाज ऑफ द फॉरेस्ट. तो अंदर जाके इस तरह के और एनिमल्स वहाँ पे थे फॉरेस्ट में. प्रोफेसर अहमद कॉशन्ड चिल्ड्रन दैट दे शुड नॉट गो डीप इन द फॉरेस्ट. तो बच्चों को मना किया गया अंदर नहीं जाने के लिए, ज़्यादा अंदर. Boojo and Paheli remembered that they have studied about forest and example in habitat of class 6. तो क्लास 6 में जब हमने हैबिटेट के बारे में पढ़ा था तो वहाँ भी हमने फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था. दे कुड सी नाउ हाउ द फॉरेस्ट प्रोवाइड्स अ होम फॉर मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स. तो अब वहाँ विज़िट करके उनको अच्छे से पता लग रहा था. ठीक है, तो ये अलग अलग तरह के उन्होंने ट्रीज़ देखे. वहाँ पे नीम का ट्री है, बैम्बू ट्री है, शीशम का पेड़ है, ये सीमल का पेड़ है.
ठीक है। लैंड वेयर द चिल्ड्रन वर वॉकिंग वॉज अनइवन एंड कवर्ड विद मैनी ट्रीज, तो जिस लैंड पे वो चल रहे थे वो फॉरेस्ट में अनइवन थी, मतलब ऊंची नीची थी और बहुत सारे पेड़ थे वहाँ पे। टीबू हेल्प देम टू आइडेंटिफाई साल, टीक, सीमल, शीशम, नीम, पलाश, फिग, खैर, अमला, बैम्बू, कचनार, इस तरह के पेड़ टीबू ने उनको बताया, क्योंकि टीबू तो वहीं रहता था तो उसको पता था फॉरेस्ट के बारे में। Professor Ahmed pointed out that there are several other trees, shrubs, herbs and grasses in the forest। तो इस क्लास 6 में भी हम पढ़ चुके हैं कि पेड़ जो है कितने टाइप के होते हैं, प्लांट्स, ट्रीज होते हैं, फिर जो हमारे श्रब होती हैं और सबसे छोटे जो हैं हर्ब्स होते हैं। ट्रीज वर ऑल्सो कवर्ड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। क्रीपर्स और क्लाइंबर्स के बारे में भी हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। The sun was barely visible through the leaves of the trees, making it quite dark inside the forest। तो सन वहाँ पे ज़्यादा दिख नहीं रहा था, थोड़ा बहुत दिख रहा था, इसकी वजह से डार्कनेस थी। अब एक्टिविटी में क्या करना है, फर्स्ट एक्टिविटी जो है, ऑब्जर्व द वेरियस थिंग्स इन योर होम एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज विच आर मेड फ्रॉम मटीरियल्स विच मे हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेस्ट। तो अपने घर में आपने चीज़ें देखनी है और लिस्ट बनानी है ऐसी चीज़ों की जो बनी होंगी फॉरेस्ट में, जो चीज़ें मिलती हैं उनसे, प्लांट से या लीव से या किसी भी चीज़ से, फ्रूट से, ठीक है, मैच स्टिक जैसे बन रही हैं। यू माइट हैव मैनी वुडन आइटम्स ऑन योर लिस्ट लाइक प्लाईवुड, फ्यूल वुड, बॉक्सेस, पेपर, मैच स्टिक्स एंड फर्नीचर, गम्स, ऑयल, स्पाइसेस, फॉडर फॉर एनिमल्स, मेडिसिनल प्लांट्स, ये भी जो हैं फॉरेस्ट से ही मिलते हैं हमें। शीला वंडर्ड हु वुड हैव प्लांटेड दिस ट्रीज, तो किसने प्लांट लगाए ये इतने सारे। प्रोफेसर अहमद रिप्लाइड दैट इन नेचर ट्रीज प्रोड्यूस इनफ सीड्स, तो नेचर में बहुत सारे सीड्स प्रोड्यूस होते हैं और वो खुद ही डिस्पर्स होके आगे से आगे फैलते रहते हैं। द फॉरेस्ट फ्लोर प्रोवाइडेड फेवरेबल कंडीशंस फॉर देम टू जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू सीडलिंग्स and saplings. Some grow up into trees. He added that branchy part of a tree above the stem is known as the crown of the tree। तो स्टेम के ऊपर जो ब्रांच्ड पोर्शन होता है प्लांट का, वो क्या होता है, क्राउन होता है। तो क्राउन की अलग अलग शेप हो सकती हैं, कोन शेप हो सकता है, सिलेंड्रिकल शेप हो सकता है, राउंड शेप हो सकता है, ये इस तरह से दिखा रखे हैं सम क्राउन शेप्स। Professor Ahmed asked children to look up and observe how the branches of the tall trees look like a roof over the other plants in the forest। तो जो लंबे वाले पेड़ हैं उनकी जो ब्रांचेस हैं उन्होंने एक तरह से स्काई को पूरा कवर कर लिया है और नीचे से अगर देखेंगे तो सिर्फ वही दिखेंगे, पेड़ ही दिखेंगे, ठीक है, रूफ की तरह लगेगा। तो ही टोल्ड देम दैट दिस इज़ कॉल्ड द कैनोपी। तो जो ऊपर जो कवरिंग एक तरह से लेयर ऑफ प्लांट्स की जो बन गई है उसको हम क्या बोलते हैं, कैनोपी। अब एक्टिविटी 17.2 में आते हैं, विजिट अ फॉरेस्ट और अ पार्क इन योर नेबरहुड, ऑब्जर्व द ट्रीज एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई देम। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ सम एल्डर्स और बुक्स ऑन ट्रीज। लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रीज दैट यू ऑब्जर्व सच एज द हाइट, शेप ऑफ लीव्स, क्राउन, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपने देखनी है कि पेड़ की हाइट कितनी है, उसकी शेप, लीव्स की शेप कैसी है, क्राउन किस तरह का है, किस तरह के उस पर फ्लावर्स आ रहे हैं और फ्रूट्स दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो ये सब हमने देखना है एक्टिविटी 17.2 में, ठीक है। तो ऑल्सो हमने क्राउन अलग अलग ट्रीज़ के ड्रॉ करने हैं, जैसे ये यहाँ पे दिखा रखे हैं इस तरह से। प्रोफेसर अहमद पॉइंटेड आउट दैट ट्रीज हैड क्राउन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड साइजेस, दीज हैड क्रिएटेड डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लेयर्स इन द फॉरेस्ट। तो इन क्राउन्स की वजह से अलग अलग लेयर बन जाती हैं फॉरेस्ट में, हॉरिजॉन्टल लेयर्स। दीज आर नोन एज अंडर स्टोरीज। तो ऊपर सबसे ऊपर जो रूफ बनती है वो कैनोपी हो गई और उसके नीचे जो अलग अलग लेयर्स बनेंगी ड्यू टू डिफरेंट साइज ऑफ द क्राउन्स, तो जो लेयर बनती है उनको क्या बोलते हैं, अंडर स्टोरीज। Giant and tall trees constitute the top layer followed by shrubs and tall grass। तो सबसे बड़े जो ट्रीज होते हैं वो टॉप लेयर बनाते हैं, उसके बाद श्रब आती हैं और फिर ग्रास आती है, श्रब और टाल ग्रासेस एंड देन हर्ब्स जो हैं सबसे नीचे वाली लेयर बनाते हैं। वुड वी सी सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज इन एवरी फॉरेस्ट? क्या हर एक फॉरेस्ट में एक तरह से के ट्री मिलेंगे? नहीं, क्योंकि डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन होगी वहाँ पे, डिफरेंट तरह का जो है एडेप्टेशंस अपने हिसाब से होती हैं, तो अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स वहाँ पे मिलेंगे। टाइप्स ऑफ एनिमल ऑल्सो डिफर फ्रॉम फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये देखिए सबसे ऊपर की जो लेयर है वो कैनोपी हो गई और नीचे की, उससे नीचे जो वो हैं वो अंडर स्टोरीज बन गई,
A few children were busy watching beautiful butterflies fluttering here and there on the flowers of shrubs and herbs. They had a close look at the bushes. While doing that, their hair and clothes had seeds and shrubs clinging to them. They came across numerous insects, spiders, squirrels, ants and various other small animals. तो बहुत सारे animals भी वहाँ पे थे, जैसे spiders, squirrels, ants, ठीक है. And they started making sketches of these creatures. The forest floor seemed dark colored and was covered with a layer of dead and decaying leaves, fruits. ठीक है, तो जो forest floor था वो भी जो है dark color हो रखा था वहाँ पे, और उस पर एक layer जो है जमा हो रखी थी ऑफ डेड एंड डिकेइंग लीव्स, फ्रूट्स, सीड्स, ट्विग्स एंड स्मॉल हर्ब्स. तो इन सब चीज़ों की एक लेयर बनी हुई थी ग्राउंड पे. द डिकेइंग मैटर वॉज मॉइस्ट एंड वार्म. तो जो डिकेइंग मैटर था वो मॉइस्ट था और वार्म था. चिल्ड्रन पिक्ड अप वेरियस सीड्स एंड लीव्स फॉर देयर कलेक्शन. तो वो बच्चों ने बहुत सारे सीड्स और लीव्स वहाँ से कलेक्ट करे अपने कलेक्शन में जमा करने के लिए. Walking over the dead leaf layer on the forest floor was like walking over a spongy carpet. ठीक है, तो decaying matter जो है थोड़ा warm होता है. Professor Ahmed suggested that children could perform an activity to get answer of this question. तो उसमें क्या करना है, पिट बनाना है, और पिट के अंदर हमने क्या डालना है, वेजिटेबल वेस्ट, लीव्स वगैरह डालने हैं, और उसको मिट्टी से कवर कर देंगे, कुछ थोड़ा बहुत पानी डाल देंगे. 3-4 दिन के बाद हम क्या करेंगे, जो ऊपर की लेयर है सॉइल की उसे हटाएंगे. डज द पिट फील वार्म इनसाइड. ठीक है, तो वार्म लगेगा वो. देर आर सो मैनी ट्रीज हेयर, ऑल्सो देर आर मैनी फॉरेस्ट लाइक दिस. व्हाट डिफरेंस विल इट मेक इफ़ वी कट सम ट्रीज फॉर अ फैक्ट्री. तो पहेली ने पूछा कि इतने सारे पेड़ हैं यहाँ फॉरेस्ट में, तो अगर थोड़े से पेड़ काट के और वहाँ फैक्ट्री बना देंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा. तो इस पे प्रोफेसर अहमद ने बोला, यू हैव रेड अबाउट ऑटोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ्स एंड सेप्टोट्रॉफ्स. तो हाँ, ये हम पढ़ चुके हैं ऑटोट्रॉफ, हेटरोट्रॉफ, सेप्टोट्रॉफ्स के बारे में. एंड हमें ये भी पता है कि ग्रीन प्लांट्स ही होते हैं जो फूड प्रोवाइड करते हैं सबको. ऑल एनिमल्स, चाहे वो हर्बीवोर्स हों या कार्निवोर्स हों, वो अल्टीमेटली प्लांट्स पे ही डिपेंड करेंगे फूड के लिए. ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन प्लांट्स ऑफन गेट ईटन बाय अदर ऑर्गेनिज्म. तो जो ऑर्गेनिज्म प्लांट खाते हैं उनको फिर आगे कोई और ऑर्गेनिज्म खाता है, तो अल्टीमेटली तो फूड उनका प्लांट ही हुआ. फॉर एग्जांपल, ग्रास इज़ ईटन बाय इंसेक्ट. इंसेक्ट को खाया ग्रास ने, मतलब इंसेक्ट ने ग्रास को खाया, विच इन टर्न इज़ टेकन बाय फ्रॉग. फ्रॉग ने इंसेक्ट को खाया, फिर स्नेक ने फ्रॉग को खाया, और फिर अल्टीमेटली ईगल ने स्नेक को खाया. तो ये एक तरह से फूड चेन बन जाती है. मैनी फूड चेन्स कैन बी फाउंड इन द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में बहुत सारी फूड चेन होंगी. ऑल फूड चेन्स आर लिंक्ड. तो कहीं ना कहीं सारी फूड चेन्स आपस में कनेक्टेड होती हैं. एंड इफ़ वन फूड चेन इज़ डिस्टर्ब, तो इट आल्सो अफेक्ट्स अदर फूड चेन्स. एवरी पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इज डिपेंडेंट ऑन द अदर पार्ट्स. इफ़ यू रिमूव वन कॉम्पोनेंट से ट्रीज, ऑल अदर कॉम्पोनेंट्स वुड बी अफेक्टेड. तो अगर ट्रीज ही हटा दिए तो वहाँ तो कोई फूड कॉम्पोनेंट या कोई चेन बचेगी ही नहीं, तो बहुत सारा लॉस होगा लाइफ का भी और ऑक्सीजन और नेचुरल रिसोर्सेज का भी. प्रोफेसर अहमद आस्क्ड चिल्ड्रन टू पिक अप लीव्स फ्रॉम द फॉरेस्ट फ्लोर एंड ऑब्जर्व देम अंडर अ हैंड लेंस. दे फाउंड टाइनी मशरूम्स ओवर द डिकेइंग लीव्स. ठीक है, तो मशरूम्स वहाँ पे मिले. दे ऑल्सो सॉ एन आर्मी ऑफ टाइनी इंसेक्ट्स. बहुत सारे वहाँ पे इंसेक्ट्स भी मिलेंगे, मिलीपीड्स, एंड्स, बीटल. ठीक है, दे वर वंडरिंग हाउ दिस ऑर्गेनिजम्स लिव्स देयर. प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट अपार्ट फ्रॉम दीज एनिमल्स विच आर ईजिली सीन, देर आर सेवरल ऑर्गेनिजम्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन द सॉइल. Paheli wondered what mushroom and other microorganisms eat. So Professor Ahmed replied that they feed upon the dead plant and animal tissues that convert them into a dark colored substance called humus. तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे वो कहाँ पे फीड करते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर है उसके ऊपर, और उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इनटू डार्क कलर्ड सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 9 में, कि जो टॉप लेयर होती है सॉइल की उसके अंदर ही ह्यूमस प्रेजेंट होता है, और इसकी वजह से जो है बहुत सारे प्लांट्स को वो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं सॉइल से,
ह्यूमस से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ह्यूमस आर नोन एज डीकम्पोजर्स। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट्स और एनिमल्स को, डेड प्लांट और एनिमल्स को ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? डीकम्पोजर्स। दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉरेस्ट। पहले रिमूव सम डेड लीव्स एंड डिस्कवर्ड अंडर दैम अ लेयर ऑफ ह्यूमस ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर। तो वहाँ पे ह्यूमस की लेयर मिलेगी फॉरेस्ट फ्लोर पे। प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस इंश्योर दैट न्यूट्रिएंट्स जो हैं प्लांट्स को, जो प्लांट लगे हुए हैं अभी, उनको जो है न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें सॉइल से। ठीक है। व्हाट हैपन्स इफ एन एनिमल डाइज इन द फॉरेस्ट। अगर कोई एनिमल मिल गया, डेथ हो गई उसकी, तो क्या होगा? उसको जो डेड एनिमल है दैट बिकम्स अ फूड फॉर वल्चर्स, क्रोज, जैकाल्स एंड इंसेक्ट्स। इन दिस वे द न्यूट्रिएंट्स आर रिसाइकल्ड। तो अगेन जो न्यूट्रिएंट्स थे उसके वो साइकिल हो जाएंगे, क्योंकि दूसरे एनिमल्स ने उसको खा लिया, और जो बचेगा रिमेन्स वो फिर से ह्यूमस बन जाएगा। नथिंग गोज वेस्ट इन अ फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट में कोई भी चीज़ जो है वेस्ट नहीं जाती। पहले रिमाइंडेड प्रोफेसर अहमद दैट ही हैड नॉट एक्सप्लेन वाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन लंग्स। तो ग्रीन लंग्स क्यों बोला जाता है फॉरेस्ट को, ये हम सब पढ़ चुके हैं पहले ही, कि जो प्लांट्स हैं वो एक प्रोसेस कैरी करते हैं, फोटोसिंथेसिस, जिसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। तो जो भी ऑक्सीजन हमें अवेलेबल है, जो हम जिसकी वजह से सांस ले पा रहे हैं, जी पा रहे हैं, वो प्लांट से मिलती है। ठीक है। तो क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। तो टीबू टोल्ड देम दैट अ फॉरेस्ट इज़ नॉट जस्ट होम फॉर प्लांट एंड एनिमल्स, मैनी पीपल आल्सो लिव इन द फॉरेस्ट। और उसके अलावा एनिमल्स और प्लांट्स के अलावा वहाँ पे लोग भी रहते हैं। सम ऑफ देम मे बिलोंग टू डिफरेंट ट्राइब्स। टीबू एक्सप्लेन दैट दीज पीपल डिपेंड मोस्टली ऑन द फॉरेस्ट। तो जो लोग वहाँ रहते हैं, ट्राइबल्स, वो उनका जो मेन सोर्स ऑफ हर किसी चीज़ के लिए वो डिपेंड रहते हैं फॉरेस्ट में। उनको खाना भी मिलता है, शेल्टर भी, पानी भी, मेडिसिन भी, सब उनको कहाँ से मिलता है? फॉरेस्ट से मिलता है। दे हैव ट्रेडिशनल नॉलेज अबाउट मैनी मेडिसिनल प्लांट्स इन द फॉरेस्ट। While Bujo was drinking water from a small stream, he saw some deer crossing the stream. So they disappeared into the bushes. The dense bushes and the tall grass provide animals with food and shelter. तो वहाँ पे जो bushes हैं और tall grass है, उससे इनको shelter भी मिलता है animals को, और food भी मिलता है। They also protect them from carnivores that live in the forest. तो predators हैं जो उनको खा सकते हैं, उनसे भी वो छुप के वहाँ रह सकते हैं उन bushes में और grass में। Tibu then started looking closely at the forest floor. Soon he called and showed children droppings of some animals and explained the difference between various type of droppings. Professor Ahmed informed them that forest officer could recognize the presence of some animal in the forest by droppings and footprints. तो forest officers को कैसे पता चलता है कि कोई एक टाइप का एनिमल वहाँ पे प्रेजेंट है? by studying their droppings and उनके जो पैरों के निशान वहाँ पे रह जाते हैं, फुटप्रिंट्स रह जाते हैं, उसकी हेल्प से। Bujo called everyone and showed them a large decaying heap of animal dropping. Several beetles and grubs were feeding on the heap and a bunch of seedlings was sprouting. ठीक है। तो एक heap of था droppings का, उस पर बहुत सारे animals थे, जो beetles और grubs वगैरह थे वहाँ पे, और seedlings भी वहाँ पे sprout हो रहे थे। These seedlings are of herbs and shrubs. The animals also disperse the seed of certain plants. तो जो उनकी जो ड्रॉपिंग्स होती हैं, जो डंग होती है एनिमल्स की, उसमें भी जो सीड्स और कई प्लांट्स के जो सीड्स मिलते हैं, जो फिर आगे से आगे सीड डिस्पर्सल का एक तरह से काम होता है वो। डिकेइंग एनिमल डंग ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द सीडलिंग टू ग्रो। और वो सीडलिंग जब ग्रो करती है तो उसको न्यूट्रिएंट भी मिलते हैं जो डिकेइंग डंग से। After listening to this, Bujo noted in his notebook, by harboring greater variety of plants, the forest provides greater opportunities for food and habitat for the herbivores. ठीक है। तो जितने ज़्यादा वैरायटी होगी प्लांट्स की, उतने ज़्यादा जो है वो हैबिटेट प्रोवाइड कर पाएगा herbivores को। लार्जर नंबर ऑफ herbivores मीन्स इंक्रीज अवेलेबिलिटी फूड फॉर वैरायटी ऑफ कार्निवोर्स। जितने ज़्यादा herbivores होंगे उतने ज़्यादा कार्निवोर्स प्रेजेंट होंगे वहाँ पे। द वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स helps the forest to regenerate and grow. Decomposers help करते हैं maintaining the supply of nutrients to grow growing plants. तो जो dead and decaying matter होता है उसको decomposers जो है humus में convert कर देते हैं. Therefore the forest is a dynamic living entity. मतलब कुछ न कुछ वहाँ पे चल ही रहा है और साइकिलिंग हो रही है चीज़ों की, full of life and vitality.
It was about afternoon and the children wanted to go back. Tibu suggested for another route for going back. While they were going back, it started raining. However, surprisingly, they saw that raindrops were not hitting the forest floor directly. तो raindrops directly उनको hit नहीं कर रही थी. क्यों नहीं कर रही थी? क्योंकि वहाँ पे लेयरिंग बनी हुई है, जो कैनोपी है और अंडर स्टोरीज हैं, तो वो सीधा जो है पानी की ड्रॉप्स फॉरेस्ट फ्लोर पे नहीं पड़ रही थी. अपर मोस्ट लेयर ऑफ फॉरेस्ट कैनोपी इंटरसेप्टेड द फ्लो ऑफ रेन ड्रॉप्स एंड मोस्ट ऑफ द वाटर वाज कमिंग डाउन थ्रू द ब्रांचेस से होके पानी आ रहा था. ठीक है, तो ये इसमें बता रखा है रेन वाटर ड्रिप्स फ्रॉम द ट्रीज एंड सीप्स इनटू द ग्राउंड. तो इससे जो पानी की वेस्टेज है वो कम से कम होती है. वहाँ पे जो पानी है सीधा वो ट्रीज़ के सहारे होता हुआ आएगा और सीधा रूट्स के साथ साथ जो है नीचे इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगी उसकी. From the leaves it was dripping slowly over branches of the shrubs and herbs. They found that the ground was still dry. After about half an hour rain stopped. They noticed that the layer of dead leaves over the forest floor appeared wet now. तो जो हल्की हल्की जो है गीली हो गई थी, जो ऊपर की लेयर थी फॉरेस्ट फ्लोर की. बट वाटर डिड नॉट स्टेगनेट इन द फॉरेस्ट. पर वहाँ पे एक जगह ऐसे नहीं होता कि पानी खड़ा हो गया या कुछ होगा, क्योंकि पानी जितना आता है साथ साथ वो नीचे इन्फिल्ट्रेट करता रहता है. वट वुड हैपन इफ़ द रेन्स, अगर इतना पानी जो है इतनी बारिश किसी टाउन में या शहर में हो तो क्या होगा? पानी पानी फ्लो कर रहा होता है तो सड़कों पे. ठीक है. Professor Ahmed told them that the forest also acts as a natural absorber of rain water and allows it to seep. तो forest से क्या हो रहा है जो है it acts as a natural absorber of rain water. rain water का natural absorber है ये, and allow करता है कि जो पानी है वो सीधा seep in हो जाए. It helps maintain the water table throughout the year. Forests not only help in controlling floods but also help maintain the flow of water in the stream. तो पानी की भी जो दिक्कत नहीं होने देता है स्ट्रीम्स वगैरह में जो पानी है, ताकि कॉन्टीन्यूसली फ़्लो करता रहे, उसको भी मेंटेन करके रखता है. अगर वहाँ ट्रीज नहीं होंगे तो सीधा जो बारिश है की बूंदें हैं सीधा ग्राउंड पे गिरेंगी और फ्लड जैसी सिचुएशन कैरी हो जाएगी वहाँ पे. हैवी रेन मे आल्सो डैमेज द सॉइल. जो पढ़ा था हमने, सॉइल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगी और वहाँ पे सॉइल इरोजन होगा. Children spent an hour at Tibu's village on their way back. The weather of the village was quite pleasant. Villagers told them that due to the surrounding forest they receive good rainfall. क्योंकि आसपास फॉरेस्ट वाला एरिया है तो ज़्यादा बारिशें भी होती हैं. अगर बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया मतलब कंक्रीट का ही बना है और आसपास पेड़ों का कवर नहीं है तो बारिशें नहीं होंगी उस जगह पे. दूसरा जो है नॉइज़ नहीं होता क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं नॉइज़ को. ठीक है. चिल्ड्रन लर्नड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द विलेज. इट हैज सरप्राइज्ड देम दैट villages and the agricultural fields of that area were created after clearing the forest about 60 years ago. Tibu's grandfather told them that when he was young the village was not as large as it was now. तो जो गांव है वो भी शुरू में छोटा सा ही था और फॉरेस्ट एरिया को काट के ही बना था. It was also surrounded by forests. The construction of roads, building, industrial development and increasing demand for wood created pressure on the forest and it started vanishing. तो धीरे धीरे फॉरेस्ट कवर है जो कम होता चला गया. He was not happy that the forest adjoining their village is not regenerating and is on verge of disappearing due to overgrazing of animals and indiscriminate felling of trees. तो पेड़ वहाँ पे काटे जा रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा उनका यूटिलाइजेशन हो रहा है फॉर वेरियस पर्पसेस. तो जो रीजनरेट नहीं कर पा रहा वो, ठीक है, ख़त्म होता जा रहा है, वैनिश हो रहा है. चिल्ड्रन प्रिपेयर्ड फ्यू पिक्चर्स ऑफ to show the consequences of such an event. At the end of the visit, Professor Ahmed asked children to sum up the importance of forest. तो children wrote, forest provide us with oxygen. तो forest oxygen देते हैं. They protect soil and provide habitat to large number of animals. soil की protection होती है, soil erosion को बचाते हैं ताकि soil erosion ना हो और बहुत सारे एनिमल्स को हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं. फॉरेस्ट हेल्प इन ब्रिंगिंग गुड रेनफॉल इन द नेबरिंग एरियाज. आसपास के एरिया में अच्छी बारिश हो वो भी इंश्योर करते हैं फॉरेस्ट. दे आर अ सोर्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, टिम्बर एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स. बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं वहाँ से. वी मस्ट प्रिजर्व आवर फॉरेस्ट. तो हमें फॉरेस्ट को बचा के रखना चाहिए.
ठीक है। तो अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो क्या हो सकता है, अगर फॉरेस्ट डिसअपियर हो गए तो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाएगा और अर्थ पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन कम होती चली जाएगी इन एब्सेंस ऑफ ट्रीज़ एंड प्लांट्स। एनिमल्स को फूड और शेल्टर नहीं मिलेगा इन एब्सेंस ऑफ ट्रीज़। सॉइल जो है वाटर को रोक नहीं पाएगी, सूख नहीं पाएगी, तो जिसकी वजह से फ्लड्स होंगे और ग्राउंड वाटर भी डिक्रीज़ होता चला जाएगा। डिफॉरेस्टेशन विल इंडेंजर आवर लाइफ एंड एनवायरनमेंट। थिंक व्हाट वी कैन डू टू प्रिजर्व आवर फॉरेस्ट। तो बहुत सब कुछ ही गड़बड़ हो जाएगा अगर फॉरेस्ट कवर धीरे धीरे कम होता चला गया, तो लाइफ जो हमारा सर्वाइवल है वो नहीं हो पाएगा पॉसिबल, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस के बारे में ही पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एग्जाम्पलर के करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।